हाँ, ये स्टूडेंट BRS. This is bank reconciliation statement. We have 4 topics in our syllabus. Earlier, there used to be one more topic, that is amended cash book, but for this COVID time period, the syllabus has been reduced, so that topic is being reduced from this chapter. We have the 4 different cases of the question, starting with the cash book positive balance, then starting with cash book negative balance, when he will be giving you in the question cash book overdraft balance. Then you will be writing that balance in the negative column, positive or negative से I will start revision. इसी तरह से मैंने आपको क्लास में टीच किया हुआ. So let me hereby stop myself and I have to elaborate here. When you have the cash book balance, you will be thinking another book is correct. Ultimately, the chapter is dealing with the case where you have to like reconcile or match the cash book balance as per your cash book with the passbook balance, which is being prepared by your bank authority. The businessman, he is having an account in the bank, and for that purpose he is having a passbook. So in passbook all the entries are being passed by the bank authorities, and whatever entries we are passing in our passbook, that is showing our balance with bank. And same, we are preparing our cash book with double column, whereby the bank column balance should always match with the passbook balance. In case it is not matching, then you have to find the reasons. And here our question is being framed, whereby he will be telling you certain reasons why both the books are not matching. For that purpose, he asked from you prepare BRS. So with the help of those transactions, whatever has been done in another book, you will be making the same changes in the book given. So if you are having in the question cash book balance, then definitely you will be thinking as per passbook. So whatever you have done in your passbook, same you will be doing in your cash book, then ultimately both the books will match. For example, LIC premium paid by bank as per your SI. SI means standing instructions. And because of that payment, the balance of your passbook has reduced. But you are not familiar at what time the bank is paying your LIC premium. In that case, बैंक का बैलेंस क्या हो चुका है, कम. आपने कैश बुक का भी माइनस में कर देना है, मींस कम कर देना है, then definitely both the book will match. Checks issued but not yet presented for payment. आपने चेक काट के लोगों को दे दिए, ठीक है, आपने कैश बुक उसी टाइम रिड्यूस कर ली, लेकिन वो लोग अभी बैंक से पैसे निकलवाने ही नहीं आए. It means कि आपका पासबुक का बैलेंस क्या रहा, up, and you are thinking as per passbook because the given balance is of cash book, right? So in that case, you will be putting that amount in the positive column. So like that way, you will be just reconciling throughout the question. Then ultimately, you will be writing the balance of another book. कैश बुक के बैलेंस से अगर स्टार्ट किया है तो आंसर आएगा बैलेंस एज पर passbook. Same is with the next two types of the question. When you start with passbook balance, then definitely you will be thinking that cash book is correct. So whatever you have done in your cash book, that you will be doing in your passbook also, then both the books will definitely be matching. Question will become little bit different, whereby you will be having the passbook negative balance. You will just be writing that balance into the negative column as the beginning point, and again you will be thinking that your cash book is correct. So let me take few questions from your back exercise. You will get an idea. Okay. All the 4 cases we will be discussing. So let's start with cash book positive balance, right? When cash book positive balance theory, what do you mean by BRS? Why it is being prepared? Which column of cash book is being matched with the passbook balance, etc. And some MCQs. He can put a certain transaction of your numerical question, and he will be asking where you will be writing. Either it will be positive column or negative column, like that, where the questions can be asked in form of MCQ, right? So let's start with the first case, whereby we have cash book balance given, and obviously we will be thinking as per passbook. So whatever is being done in our passbook, same changes we will be making in our cash book balances too. Let's start with, this is BRS. हम at the back exercise questions, illustration maximum और follow up हमने discuss किए होते हैं. So we have the question 1 to 5 questions are of cash book positive balance. Positive को in your book he calls favorable balance. So let me start with 5th question from the back exercise, page number 11.49. So all the transactions in the particular columns you will write yourself. Okay, I will just be writing their short form because ultimately I just have to solve the question for you, right? Top heading, don't forget to write BRS. ठीक, as on जो भी डेट दे रखी है, 5th question from the back exercise I am solving. As on balance as per cash book, लिखिए जी, balance as per cash book he is giving. I will be using abbreviations. आपको full लिखना है. CB means cash book, and that balance he is giving 12,000. Now how I have to proceed to the next transaction? Because
I have the beginning balance as cash book and I will be thinking that passbook is correct. So whatever you have done in your passbook, same you will be doing in your cash book, then definitely both the books will match, right? Read the first transaction. चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक. आप 31 मार्च तक बीआरएस बना रहे हैं. 27 मार्च को आपने बैंक में चेक्स डिपॉजिट करवाए 6,000 के, लेकिन बैंक ने उसे क्रेडिट किया 5 अप्रैल को. मींस 31 मार्च तक वो चेक क्रेडिट हुआ ही नहीं. यहाँ पे वर्डिंग लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड. रेस्ट ऑफ द वर्डिंग यू विल राइट योरसेल्फ. चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक. इट मींस की पासबुक में बैलेंस क्या है? डाउन है. आप कैश बुक में भी डाउन कर दीजिए, दोनों बुक्स मैच हो जाएंगे. बीआरएस का मतलब ही क्या है? You have to match both the books. You have to reconcile both the books. Now come to the next. Bank has given 14 rupees interest to us. So whenever bank gives the interest, credited का मतलब है bank gives the interest to us. So whenever bank gives the interest to us, automatically मेरे account में पैसा बढ़ जाता है. How I am thinking? From which point of view I am thinking? I am just thinking that passbook is correct. तो पासबुक में 14 रुपीस बढ़ गए, आप कैश बुक में भी बढ़ा दीजिए. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इनटू कैश बुक, राइट? आगे चलते हैं. 8,000 के चेक 31 मार्च से पहले हमने इशू करे थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशूइंग ऑफ चेक? दैट इज यू आर जस्ट गिविंग द चेक्स टू समवन. एज एंड व्हेन आप अपनी चेकबुक में से चेक काट के किसी को देते हो, आपका कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस डाउन आ जाता है और आप ये एंट्री भी कर लेते हो. लेकिन 31 मार्च तक वो लोग पैसे ही नहीं निकलवाने आए. जब वो पैसे नहीं निकलवाने आए, पासबुक का बैलेंस क्या रहा? अप. सो वी आर थिंकिंग दैट पासबुक इज करेक्ट. इफ पासबुक में प्लस है वो बैलेंस, तो आप यहाँ पे भी प्लस कर दोगे. क्या लिखोगे? चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. फुल वर्डिंग यू विल राइट हियर. नाउ कम टू नेक्स्ट. बैंक चार्जेस. व्हाट इज द एंट्री ऑफ बैंक चार्जेस? जर्नल में किया हुआ है. बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. तो बैंक ने हमारे अकाउंट में से ही वो चार्जेस क्या कर लिए हैं? डिडक्ट. So whenever bank deduct the bank charges, our passbook balance come down, and he says that is only being entered in passbook only, right? पासबुक में ही ये एंट्री हुई है. इट मींस कि कैश बुक का बैलेंस क्या रहा? अप. हम सोच किसके अकॉर्डिंग रहे हैं? पासबुक के अकॉर्डिंग. पासबुक में अगर डिडक्टेड है वो बैलेंस, तो आप यहाँ से भी डिडक्ट कर दोगे. मींस आप माइनस में लिख दोगे. तो क्या लिखोगे? बैंक चार्जेस एंटर्ड इन पासबुक ओनली. Whatever wording he is giving, you just need to copy, right? Next, last पढ़िए. Check issued to a creditor of ₹500. जब हम किसी क्रेडिटर को चेक देते हैं, जर्नल एंट्री थोड़ी सी माइंड में ले आया करो. तब एंट्री क्या की होगी? लेट मी राइट द एंट्री हियर. क्रेडिटर टू बैंक. आपने किसी अपने क्रेडिटर को चेक दिया, तो आपने ये एंट्री कर ली होगी. मींस आपने अपनी कैश बुक में बैंक का बैलेंस क्या कर लिया होगा? रिड्यूस. आगे देखो. Check issued to a creditor for ₹500 was through mistake entered in the cash column of cash book. आपको डबल कॉलम ऑफ कैश बुक करवाई हुई है. So whenever you issue a check to a creditor, आपको पेमेंट साइड मींस क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में बैंक वाले कॉलम में ये अमाउंट लिखनी थी बाय क्रेडिटर करके. आपने गलती से ये अमाउंट कैश बुक में लिखी. इट मींस कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा रहा, क्योंकि आपने बैंक कॉलम में तो ये अमाउंट डाली ही नहीं. ठीक. अब हुआ क्या? ये वो चेक है जो आपने जिस बंदे को भी दिया है, whosoever was your creditor, he has not yet come to bank to withdraw the money. इट मींस की पासबुक भी बढ़ी रही, कैश बुक आपकी गलती के कारण बढ़ी रही. दोनों बुक्स ऑलरेडी मैच है, इसलिए ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बीआरएस में नहीं आनी है. आपने नीचे नोट लिख के आना है. ट्रांजैक्शन नंबर 6 is not to be entered in BRS because of this transaction both the books were already matched. ठीक है. So there was no case of reconciliation, right? Now let's see what you have to do. जैसे आप लेजर में क्या करते थे, which side seems to be greater, आप उसका टोटल लिखिए. तो I think your positive column seems to be greater. This is 20,014 rupees. ठीक. दूसरी साइड का भी टोटल सेम लिख दीजिए. और रफ वर्क में जो शॉर्टर साइड है उसका टोटल ग्रेटर साइड के टोटल में से डिडक्ट करिए. सो हियर आई डू 20,014 रुपीस में से 6,018 I have to deduct. This is what? 6. This is 10, 9. This is 9. This is 13. 13,996. You will write this balance here. Which side is shorter? और उसके सामने आप लिखेंगे आंसर में बैलेंस as per what? Second book, that is passbook. कैश बुक के बैलेंस से we have started and we have arrived at passbook balance, right? तो पासबुक का आंसर हमारा आ रहा है 13,996. चेक फ्रॉम योर आंसर शीट, जो आंसर में दे रखा है आपका आंसर पेज we have at the book at the end. That is 5th question we were doing. बिल्कुल ठीक. Appropriate answer, right answer 13,996. So this was your first case when positive balance of cash book was given.
So whenever any of the transaction is given in the question and that you are skipping, you have to tell your examiner that why you have skipped that transaction. Okay, so hereby 6 transaction we skipped. Now come to the second case, when cash book negative balance is being given. No, in your book he is putting the second case when favorable positive balance of passbook is being given. So I will also be following the sequence of your book. Passbook का जब आपको positive balance दे रखा है students, then you will be thinking the other book is correct. It means कि hereby you will be thinking reverse. You will be thinking that your cash book is correct. So whatever you have done in your cash book, that same you will be doing in your passbook. Then automatically both the books will match. So let me do 8th question from this. 8th question seems to be comprehensive. I'm picking that question. Page number of my book is 11.49. Open that page. Positive and negative. ऊपर proper heading दीजिए. BRS as on 31st March 2019. Broad letter में BRS as on 31st March 2019. Right. So in the very first line, he wrote passbook of a merchant showed a credit balance of. तो क्या लिखेंगे? Passbook के credit का हाँ, this also I wanted to discuss with you. Though already I told you to note down in your book when I for the first time taught this chapter to you in the class, like credit balance of PB means positive. ठीक है. Debit balance of CB means cash book means positive. बाकी reverse है. Debit balance of PB will be negative. Let me rotate the camera here. What I wrote. See once again. Credit balance of PB means positive balance है. Debit balance of CB means cash book का positive balance है. अब इसका reverse you can write yourself. Debit balance of PB means negative. Credit balance of CB means negative. So like negative means overdraft balance, right? So very first line he is writing credit balance as per passbook. So I will be writing the same here. Credit balance as per passbook. I will be considering my other book is another book is correct. Second book is correct. And this is positive balance 33,570. Now, whatsoever I will think, whatsoever I will put in positive or negative column, I will think that cash book is correct. Because if the beginning balance is of passbook, definitely other book is cash book, and you will be thinking that cash book is correct. अगर कोई चीज कैश बुक में ऐड हो चुकी है तो आप इस बुक में भी ऐड कर देंगे, दोनों बुक मैच हो जाएंगी. अगर वहां पे आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया है तो आप इस बुक में भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों बुक फिर से मैच हो जाएंगी. अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ BRS इज to reconcile, means to match both the books, right, with each other. Let me read the first point. Checks and drafts. Accounting treatment चाहे ड्राफ्ट हो चाहे चेक हो दोनों की सेम है. तो कहता है चेक्स और ड्राफ्ट हमने बैंक में भेजे थे, बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किए, राइट. अमाउंटेड टू ₹7900. यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन खत्म है. 7900 के चेक मैंने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजे. जैसे ही मैंने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजे मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा ली. और मैं सोच भी किसके अकॉर्डिंग रही हूँ? कैश बुक के अकॉर्डिंग. अगर कैश बुक बढ़ चुकी है तो पासबुक को भी बढ़ा दीजिए. आप वहां पे वर्डिंग क्या लिखेंगे? चेक्स एंड ड्राफ्ट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड. दिस लाइन येट नॉट कलेक्टेड आप अपनी तरफ से ऐड करोगे. चेक्स एंड ड्राफ्ट्स सेंट टू बैंक, रेस्ट आई एम स्पीकिंग, बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक. दिस वाज योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन. इसी में एक सेकंड ट्रांजेक्शन है. 3 चेक्स थे, तीनों की अमाउंट है 3000 प्लस 1500 4500 बन गया, प्लस 2000 6500. 3 चेक्स थे. वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. आपने किसी को इशू करे होंगे, लोगों ने अभी तक नहीं निकलवाए. जब आपने किसी को इशू करे आपने उसी टाइम अपनी कैश बुक क्या कर ली? डाउन कर ली. हम सोच भी किसके अकॉर्डिंग रहे हैं स्टूडेंट्स? वी आर थिंकिंग दैट आवर कैश बुक इज करेक्ट. So whatever we have done with in our cash book, same we will be doing in our passbook. 6500 से हमारी cash book down है. You will be writing it in the negative column. Both the books will automatically match. Wording क्या लिखेंगे? Free checks issued but not yet presented for payment. Not yet presented for payment, not yet collected or credited is a word which you will be introducing from your side. That he never gives in your statement, right? That you have to mold the given statement. Now come to next, second पे आइए. बैंक हैज पेड अ बिल. बैंक ने हमारा एक बिल पे किया. डेफिनेटली हमारी पासबुक डाउन आ चुकी होगी, 10,000 का था, बट इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक. बस यहीं पे रुकेंगे. फिर से एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म. बैंक में हमारा 10,000 कम है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई. मैं कैश बुक के अकॉर्डिंग ही तो सोच रही हूँ. कैश बुक में 10,000 हमारा प्लस है, हम 10,000 प्लस में लिखेंगे. अ बिल डायरेक्टली पेड बाय बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश, राइट. वर्डिंग आपने नॉट येट अपनी तरफ से एड अप करना है.
A bill directly paid by bank but not yet entered into the cash book in front of this 10,000. Now come to next. A BR. BR is always our asset which was of 5,000 which was discounted with bank was dishonored on the due date. आप बैंक से वो बिल डिस्काउंट करवा चुके हैं, ठीक है, आप अपनी कैश बुक में एंट्री कर चुके हैं. आप तो बीआरएस का पूरा चैप्टर कर लिया स्टूडेंट्स. जब आप अपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाते थे, लेट मी रिमाइंड यू द एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बीआर. आप ये एंट्री कर चुके हो, मींस आप अपनी कैश बुक में अपना बैंक का कॉलम बढ़ा चुके हो. वो चेक क्या हो गया है, वो बीआर क्या हो गया है, डिसऑनर. पासबुक में वो क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है, लेकिन कैश बुक हमारी क्या है, अप है, राइट क्योंकि डिसऑनर के बारे में बैंक ने तो एंट्री कर ली लेकिन आपने नहीं करी. इट मींस कि कैश बुक में वो 5,000 अप है तो आप इसमें भी अप कर दोगे, राइट. अगेन आई एम रिपीटिंग, वन ऑफ द योर बीआर यू गॉट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक. सो जैसे ड्यू डेट आई, बैंक वालों को पता चला ना डिसऑनर हुआ. अब क्वेश्चन यहाँ पे साइलेंट है. यू विल एज्यूम दैट बैंक हैज नॉट येट इंटीमेटेड टू द मर्चेंट. बैंक ने इस बात की इंफॉर्मेशन अभी मर्चेंट और प्रोप्राइटर को नहीं दी. इट मींस कि आपकी कैश बुक में डिसऑनर की एंट्री तो हुई नहीं. यू जस्ट हैव इंक्रीज्ड योर बैलेंस. सो दैट्स व्हाई अगर कैश बुक में प्लस है तो पासबुक में भी प्लस कर दो. आगे चलते हैं. थर्ड, बैंक हैज चार्ज. बैंक हैज चार्ज का मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में से पैसे काट लिए. किस चीज के, 130 रुपीज ऑफ कमीशन फॉर द कलेक्शन ऑफ आउटस्टेशन चेक. बैंक हमारे बाहर के चेक, आउट ऑफ द सिटी जो चेक रहते हैं, उसकी कलेक्शन के बदले में कुछ सर्विस चार्जेस लेता है. तो 130 रुपीज पासबुक में क्या हो गए, डाउन हो गए, लेकिन हम लोगों ने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करी. इट मींस कि कैश बुक में 130 रुपीज क्या है, अप है, क्योंकि आपने बैंक चार्जेस की एंट्री अभी तक करी ही नहीं. देन बैंक ने हमें 100 रुपया इंटरेस्ट दिया. बैंक गेव मी इंटरेस्ट ऑफ ₹100. Okay, what I wanted to tell you, bank has given us interest. जैसे बैंक ने हमें 100 रुपीज डिस्काउंट इंटरेस्ट दिया, हमारा पासबुक का बैलेंस अप हो गया, लेकिन इस इंटरेस्ट के बारे में कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है. इट मींस कि कैश बुक हमारी 100 रुपीज से क्या रही, डाउन. अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर थिंकिंग दैट कैश बुक इज करेक्ट. Whatever we have done in our cash book, that only. So basically there were 3 points, but in each point he has put 2 transactions. So ultimately 6 transactions करके हमने क्वेश्चन को फिनिश किया. Let me get the total. This side seems to be greater, right? This is 17,900, 17 plus 5, 22,900, 22,900 plus 33,570 plus 130. 0, 0. This is 1, 10, 16, 1, 6, 5. 56,600. Now this, देखो 50,000 आंसर होगा भाई. So दोनों साइड का टोटल I already told to you. You will write same. Then 6,600 I will be deducting and 50,000 is answer. Let me check your answer page. This is 8th question we were doing. And what is the answer given in your book? 50,000, that is balance as per cash book, because we have the started balance. Yes, 50,000 matching with the book. So how you will present this answer? Let me tell you. Total should be accurate. Total should be done speedily, because ultimately you have to complete your paper also. So this is the total 56,600. ग्रेटर साइड का टोटल शॉर्टर साइड पे भी लिख देते हैं, ठीक है. शॉर्टर साइड का टोटल करके ग्रेटर साइड में से माइनस करते हैं इन योर रफ वर्क, इन योर वर्किंग नोट्स, एंड हियर बाय इन फ्रंट ऑफ दैट यू विल बी राइटिंग बैलेंस एज पर व्हाट. पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट किया, वी अराइव्ड एट द बैलेंस ऑफ कैश, ठीक. दिस इज व्हाट 50,000. So same answer as of your book we got, right? This is the answer. Now we have to pick the cases of unfavorable balances. So unfavorable balances, I will pick 12th question from your book. It seems to be comprehensive one. 12th question from your book. When we have cash book negative balance, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको नेगेटिव बैलेंस को नेगेटिव वाले कॉलम में लिखना है. एंड अगेन यू विल बी थिंकिंग एज पर पासबुक. So whatever you have done in your passbook, same you will be doing in your cash book balance, right? So let's start with read 12th question, everyone. Let's see. 12th question of the same chapter, BRS, and in my book the page number is 11.50. Fine. On checking of Ram's cash book with bank statement of his overdraft current account for the month of November. आप क्या लिखेंगे ऊपर? BRS for the month of November 2017.
कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 4500 एंड यू विल बी थिंकिंग एज पर पासबुक. लेट मी मेक द फॉर्मेट. ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, दिस इज योर, याद है ना, फर्स्ट कॉलम का नाम पर्टिकुलर्स रखना है, सेकंड कॉलम पॉजिटिव आइटम, थर्ड कॉलम नेगेटिव आइटम. So this is positive, this is negative. Overdraft balance as per cash book. So I will be using abbreviations here, but you are not supposed to use. Overdraft balance as per what cash book? This is CB. So as it is overdraft, I am supposed to write it in the negative column. Now I will be thinking as per passbook. So whatever you have done in your passbook, same you will be doing here. Automatically both the books will match. Read the first point. Yes, very, very important point. Payment side of cash book had been undercast by ₹150. पहले तो यहीं पे रुकते हैं. कैश बुक, ये मैं छोटी सी कैश बुक बनाती हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही समझाती हूँ. दिस इज कैश बुक, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड. डेबिट साइड पे कैश का इनफ्लो आता है, क्रेडिट साइड पे कैश का आउटफ्लो आता है. सो व्हेनेवर ही टॉक्स अबाउट रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक मींस वो डेबिट साइड की बात करता है. जब कभी भी वो पेमेंट साइड की बात करता है मींस वो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक की बात करता है. तो उसने क्या लिखा है क्वेश्चन में, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडरकास्टेड बाय ₹150. मींस आपने पेमेंट साइड पे ₹150 कम लिखे हैं. आपने इसका इफेक्ट क्या देखना है, इसका मतलब है कि आपने खर्चे कम लिखे. दिस इज 150 भाई, वो 1 उसके साथ अटैच हो गया सर्कल के साथ. 150 यू रोट लेस, गलती से 150 रुपीज आपने एक्सपेंस साइड पे नहीं लिखा. जैसे ही आपने 150 एक्सपेंस साइड पे नहीं लिखा मींस आपकी कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया. हम सोच किसके अकॉर्डिंग है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का थोड़ी ना बढ़ा है. पासबुक का 150 से कम है, हम सोच भी पासबुक के अकॉर्डिंग रहे हैं, तो पासबुक में माइनस कर दो. आगे चलते हैं. 750 के चेक, यस अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. A check for ₹750 drawn on his saving deposit account. दो तरह के अकाउंट होते हैं बेटे, आपने बिजनेस स्टडी में आपको मैम ने करवाया होगा. वन इज योर सेविंग अकाउंट एंड अदर इज योर करंट अकाउंट एंड थर्ड वन इज योर रिकरिंग डिपॉजिट एंड द फोर्थ वन इज एफडी. ठीक है, तो एज अ बिजनेसमैन हमारा जो बैंक में अकाउंट चलता है, एज अ बिजनेस वूमैन मेरा जो बैंक में अकाउंट होगा वो करंट अकाउंट होगा. मींस बिजनेस से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शंस में करंट अकाउंट की हेल्प से करूंगी. और जो मेरा बैंक में सेविंग अकाउंट है वो मेरा इंडिविजुअल नाम पे है. ठीक है, like Sonia Enterprises will be running current account in the bank and only Sonia will be running a saving account in the bank. ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, हम बात कर रहे हैं मिस्टर राम की. राम का एक पर्सनल अकाउंट था जिसे वो सेविंग डिपॉजिट कहता है. ठीक है, उसने एक चेक अपने सेविंग में से निकलवाया लेकिन गलती से उसने करंट अकाउंट में एंट्री कर दी. राइट, इट मींस कि उसने कैश बुक में 750 रुपीज कम कर दिए हैं. हम सोच किसके अकॉर्डिंग रहे हैं, पासबुक के अकॉर्डिंग. पासबुक में 750 रुपीज कम नहीं हुए भाई, क्योंकि पासबुक में जैसे ही आप चेक भेजोगे वो आपके करंट अकाउंट में से ही कम करेंगे. पासबुक में करंट अकाउंट से कम है और बीआरएस हम करंट अकाउंट का बना रहे हैं. पहले तो इस बात की श्योरिटी रखो, बीआरएस हम सेविंग अकाउंट का नहीं बना रहे हैं, बिकॉज सेविंग अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. ठीक है, बिजनेस का नहीं है. उसने पैसे निकलवाए थे अपने सेविंग अकाउंट में से, उसने गलती से उसे करंट अकाउंट में डाल दिया. मींस कैश बुक में उसने 750 रुपीज कम कर दिए. हम सोच किसके अकॉर्डिंग रहे हैं, पासबुक के अकॉर्डिंग, और ये सारा उसकी मिस्टेक के कारण हुआ. बट दिस सेम मिस्टेक हैज नॉट बीन कमिटेड बाय द बैंक अथॉरिटीज. बैंक अथॉरिटीज में आपका करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ा हुआ है. हम सोच भी तो पासबुक के अकॉर्डिंग रहे हैं, इसलिए 750 प्लस में डाल दो. आगे चलते हैं. 7000 के चेक हमने निकलवाए, मतलब लोगों को इशू किए. ड्रॉन का मतलब भी इशू टू द पब्लिक, टू द क्रेडिटर्स एटसेट्रा. ठीक है, टू आवर सप्लायर्स एटसेट्रा. लेकिन वो चेक निकलवाने ही नहीं आए. जैसे ही हम लोगों ने चेक इशू करे कैश बुक डाउन हो गई, लेकिन वो लोग निकलवाने नहीं आए, तो पासबुक हमारी अप रही है. हम सोच भी पासबुक के अकॉर्डिंग रहे हैं, इसलिए 7000 प्लस में लिख दो. आगे चलते हैं. 6000 के चेक हमने बैंक को बोला कि तू हमारे कलेक्ट कर देना. बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं करे. हम पासबुक के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, जब बैंक ने कलेक्ट नहीं करे तो बैंक ने बैलेंस भी नहीं बढ़ाया होगा. बैंक में हमारा 6000 से बैलेंस कम चल रहा है, यहाँ पे भी कम कर दो. आगे चलते हैं. 75 रुपीज बैंक चार्जेस थे एज पर द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट, लेकिन आपने ये कैश बुक में नहीं डाले. 75 रुपीज से हमारी पासबुक डाउन है. आप कैश बुक को भी डाउन कर दो, क्योंकि हम पासबुक को सही मान रहे हैं, कैश बुक को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं. 2500 का डिविडेंड. डिविडेंड किसको मिलता है, whosoever is a shareholder. So Mr. Ram will be the shareholder. उसने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे तो कंपनी की तरफ से डिविडेंड सीधा अकाउंट में जाता है भाई. तो आपके अकाउंट में 2500 का डिविडेंड आया. राइट,
सीधा बैंक में आया, लेकिन आपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, जैसे 2500 का डिविडेंड आया आपकी पासबुक बढ़ गई होगी। तो पासबुक अगर बढ़ी हुई है तो कैश को भी बढ़ा दो। नाउ दिस साइड सीम्स टू बी ग्रेटर फॉर द फर्स्ट टाइम। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने 2 करे हैं, पॉजिटिव बैलेंस साइड बड़ी रहती थी, पहली बार है नेगेटिव साइड बड़ी है, इट मींस कि आंसर भी नेगेटिव में आएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट 10,500 में 225 ऐड करना है, सो इट इज 10,775, राइट। 775, what we have to deduct? 9,500 plus 750, 0, 5, 12. This is what 10. 10,250 minus करिए, 10,250, this is 5, this is 2, this is 5. 525 will be your answer. और अब लिखने का ढंग क्या है, क्योंकि नेगेटिव साइड बड़ी है, ठीक, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा भाई किसका, पासबुक का। पासबुक को या तो आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक लिख दो, या मैंने आपको पहले ही सिखाया पासबुक के नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या है, डेबिट। यू कैन ईदर राइट ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, और ओवरड्राफ्ट को आप रिप्लेस करके डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते हो। नाउ यू कैन सी the last topic whereby negative balance as per passbook is given. So for that you can see 16 question from the back exercise. Negative balance as per passbook he will be giving, and what we will be thinking, cash book is correct. So whatever you have done in your cash book, same you will be doing in your passbook. 16 question from the back exercise. This is positive, this is negative. On 31st January 2019, the passbook of B.K. Tiwari shows a debit balance. पासबुक की डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस रहता है बेटे। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं हरिडली करती हूँ, ये क्वेश्चन प्लस माइनस ही लिखूंगी। आगे चलो। चेक्स ऑफ ₹15,600 ड्रॉन का मतलब है इशू करे थे, इसमें से सिर्फ 11,000 के ही लोगों ने निकलवाए हैं। इट मींस कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4600 से आपकी पासबुक बढ़ी रही है, लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक में 4600 डाउन हो गया तो आप इसमें भी डाउन कर दो, बिकॉज 11,000 दोनों में बराबर है। आगे चलते हैं। 800 का चेक हैज बीन गिवन डेबिट बाय द बैंकर इन द पासबुक ओनली। डेबिट बाय द बैंकर मतलब बैंक ने हमारा 800 से बैलेंस डाउन कर दिया। बैंक जब कभी भी हमें डेबिट करता है तो हमें डाउन कर देता है, हमारा बैलेंस डाउन कर देता है। मींस पासबुक में हमारा बैलेंस क्या है, डाउन है, लेकिन हम सोच रहे हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग, कैश बुक में तो अप है ना, इसलिए इसे प्लस में डाल दो। आगे चलते हैं। अ चेक ऑफ ₹200 वॉज क्रेडिटेड इन द पासबुक। बैंक ने क्रेडिट करने का मतलब है बैंक ने हमारा 200 से बैलेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन कैश बुक में ऐसा कोई भी बैलेंस नहीं बढ़ा। कैश बुक के अकॉर्डिंग जब सोचोगे तो कैश बुक में अगर माइनस है तो इसमें भी माइनस कर दो। 21,000 के चेक हमने बैंक को कलेक्ट करने को भेजे थे, इसमें से 7,400 के चेक हो तो गए हैं कलेक्ट, लेकिन वो 5 फरवरी को हुए हैं। इट मींस कि 7,400 के नहीं हुए थे। 7,400 से आपकी पासबुक डाउन है, लेकिन कैश बुक तो 7,400 से अप है ना। जैसे ही आपको चेक मिलता है और आप बैंक में भेज देते हो, आप उसी टाइम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को इंक्रीज कर लेते हो। आगे चलते हैं। अ चेक ऑफ ₹1,000 रिटर्न डिसऑनर्ड। इसकी एंट्री सिर्फ पासबुक में हुई है और वो 1000 से हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा रहा। क्यों? क्योंकि डिसऑनर की एंट्री हमने खुद तो करी नहीं। आगे चलते हैं। बैंक ने इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस काटे जो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुए। इट मींस की कैश बुक फिर से 100 रुपीज से बढ़ी रही। आगे चलते हैं। अ चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इन कैश बुक। डेबिटेड मतलब वी रिसीव्ड, हमने कैश बुक में उसे रिसीव्ड चेक मान लिया, हमने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन हम उस चेक को बैंक में भेजना भूल गए। मींस कैश बुक का बैलेंस तो अप है। सो दिस अगेन नेगेटिव साइड सीम्स टू बी ग्रेटर। कितना बनेगा? 45,800, राइट। इस साइड का देखिए 82, 92, 93 और 5 9800। 0 0 नेगेटिव बैलेंस आएगा भाई एज पर कैश बुक 0। दिस इज व्हाट 36,000। क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। सो यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना है, यू मे आस्क एनीथिंग।